নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে আবেলিৰ খবৰ এসআই কেলেংকাৰীত জড়িত ৰুবুল হাজৰিকাৰ আত্মসমৰ্পণ ৰুবুল হাজৰিকা আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নলবাৰী সিআইডি কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে ৰুবুল হাজৰিকাক আৰু হয়তো সোধাপোছা কৰা হ'ব এসআই কেলেংকাৰীৰ অন্য এক খলনায়ক ৰুবুল হাজৰিকা কি ধৰণে ৰুবুল হাজৰিকাই দিবন ডেকাৰ সৈতে একেলগে লগ হৈছিল বা পিকে দত্ত কি ধৰণে জানিছিলে সমগ্ৰ কথাখিনি এতিয়া তদন্তৰ আওতালৈ আহিব এডিজিপি জিপি সিঙৰ নেতৃত্বত জেৰা নলবাৰী আৰক্ষী চাউনীত আৰু জেৰাৰ অন্তত গুৱাহাটী অভিমুখে ধৃত ৰুবুল হাজৰিকাক লৈ জিপি সিঙৰ নেতৃত্বত ৰাওনা হৈছে এডাল বিশাল আৰক্ষী এসআই কেলেংকাৰীত জড়িত ৰুবুল হাজৰিকাই কৰিছে আত্মসমৰ্পণ ৰুবুল হাজৰিকাই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নলবাৰীত আৰু এতিয়া সিআইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰথমে লৈ যোৱা হয় ৰুবুল হাজৰিকাক এসআই কেলেংকাৰীৰ অন্য এক খলনায়ক ৰুবুল হাজৰিকা তেওঁ সোধাপোছা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে আৰু সন্দৰ্ভত নলবাৰীৰ পৰা প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ত্ৰিদীপ কলিতাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এসআই কেলেংকাৰীৰ আন এজন খলনায়ক পিকে দত্ত অথবা দিবন ডেকাৰ পিছত এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰুবুল হাজৰিকা ইতিমধ্যে ৰুবুল হাজৰিকাই নলবাৰী আৰক্ষী চাউনীত আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি খবৰ ওলাইছে আৰু তাৰ পিছতে এডিজিপি জেপি সিঙৰ নেতৃত্বত অহা এটা বৃহৎ আৰক্ষী দলে বহু সময় ধৰি নলবাৰী আৰক্ষী চাউনীত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল ৰুবুল হাজৰিকাক আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটী অভিমুখে লৈ যোৱা হৈছে ৰুবুল হাজৰিকাক কিন্তু এটা কথা নকলে হয়তো আধৰুৱা হৈ ৰব যিদিনাৰ পৰা এসআই কেলেংকাৰীৰ এইটো খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই যেন নলবাৰীত এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত লোকসকলক এটাৰ পিছত আনটো আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল নলবাৰীও যেন এসআই কেলেংকাৰী এক অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো যি পলাতক অৱস্থাত থকা যিগৰাকী ৰুবুল হাজৰিকা এসআই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু তেখেত পলাতক অৱস্থাত আছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে নলবাৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে এডিজিপি জেপি সিঙৰ নেতৃত্বত বা জেপি সিঙৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এইগৰাকী ৰুবুল হাজৰিকা আৰু তাৰ পিছতে ৰুবুল হাজৰিকাক বহু সময় ধৰি এডিজিপি জেপি সিং সহ আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলটোৱে আৰক্ষী চাউনীত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু তাৰ পিছত গুৱাহাটী অভিমুখে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে লৈ যোৱা হৈছে এইগৰাকী ৰুবুল হাজৰিকাক তাৰ লগে লগে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এসআই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত থকা দিবন ডেকা সেই দিবন ডেকা যেতিয়া কৰায়ত্ব কৰা হ'ল বা দিবন ডেকাই যেতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ পিছতে ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু আৰক্ষীৰ হাতত বহু ইনপুট আহি পৰিছে আৰু দিবন ডেকাৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে হয়তো বহু নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে যাৰ বাবে পুনৰ আজিৰ দিনটোত ৰুবুল হাজৰিকা আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰু এই মুহূৰ্ততো স্পষ্ট নহয় আত্মসমৰ্পণ নে গ্ৰেপ্তাৰ যিহেতু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ কথা স্পষ্ট কৰা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা গোপন খবৰ মতে এয়া ৰুবুল হাজৰিকা আত্মসমৰ্পণ কৰিছে সেয়া যে নহওক এতিয়া যদি আমি আন এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ যে যিগৰাকী দিবন ডেকা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত আছে দিবন ডেকা আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছতে এতিয়া বৰভাগ অঞ্চলৰ বহু যুৱক পলাতক অৱস্থাত থকা বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে যিসমূহ যুৱক আচলতে সেইগৰাকী দিবন ডেকাৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ আছিল আৰু দিবন ডেকাৰ সৌহাৰ্দ স্বৰূপ আছিল তেনে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি কেইবাগৰাকীও যুৱক আজিৰ তাৰিখত পলাতক অৱস্থাত থকা বুলি এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ যে ৰুবুল হাজৰিকা এসআই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত এইগৰাকী ৰুবুল হাজৰিকাই অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে নলবাৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত এসআই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত আনহাতে সৰোজ শৰ্মাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ সৰোজ শৰ্মাক এসআই কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত সৰোজ শৰ্মা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সৰোজ শৰ্মাক আৰু অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ লগত জড়িত শৰ্মা সিআইডিয়ে দুদিন পূৰ্বে বঙাইগাঁৱৰ কাৰ্যালয়টো সিল কৰিছিল সেই বিশেষ কাৰ্যালয়টো অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ কাৰ্যালয় সিল কৰা হৈছিল আৰু ৰুবুল হাজৰিকা আৰু সৰোজ শৰ্মাক বিচাৰি আছিল সিআইডিয়ে অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এসআই কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত সৰোজ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰু কাৰ্বি আংলঙত 5 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে চাঞ্চল্যকৰ খবৰ 1 কেজি হেৰোইন আৰু লগতে 1 কেজি ব্ৰাউন সুগাৰ জব্দ কৰা হৈছে যি ড্ৰাগছে তিনকৈ মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে যুৱ প্ৰজন্মক তেনে 5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে দিলা আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে খবৰ লাভ কৰিছিল তালাচী চলাইছিল এখন ট্ৰাকত আৰু এখন ট্ৰাকৰ পৰা ট্ৰাকৰ নম্বৰ আমি দেখুৱাইছো সেই ট্ৰাকখনৰ পৰা ড্ৰাগছ কিনি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নুৰ ইছলাম আৰু আব্দুল আজিজ নামৰ দুজনকৈ লোক নুৰ ইছলামৰ ঘৰ হৈছে মণিপুৰৰ পূব ইম্ফল
খেত্ৰী গাঁৱত আৰু ইফালে আব্দুল আজিজৰ ঘৰ হৈছে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইত জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনি ইতিমধ্যে জনাইছো যে বজাৰ মূল্য ক'লা বজাৰৰ মূল্য বা চোৰাং মূল্য প্ৰায় 5 কোটি টকা আৰু এনেকৈ কোনে আচলতে বৃহৎ নেটৱৰ্ক চলাই আছে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতে হয়তো প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই ধৰণে এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক ড্ৰাগছৰ গঢ়ি তুলিছে এটা দুষ্ট চক্ৰই এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ নিউজ ফ্ল্যাশ আগবঢ়াইছে অজন্তা শুজ এইটো সপ্তাহৰ দাদাৰ পছন্দ অজন্তা শুজ স্ট্রং মানে জানেনে মাইথন স্ট্রং মানে মাইথন নির্মাণৰ মানদণ্ড नमस्कार इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं जया सिन्हा मेरे साथ है मनीषा शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन 9 बार सांसद रहे पासवान का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित प्रमुख नेताओं ने दिवंगत नेता को दी भावभीनी श्रद्धांजलि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू 28 अक्टूबर को मतदान के साथ होगी 3 चरणों वाले चुनाव की शुरुआत पहले चरण में 71 दूसरे में 94 और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट भारतीय रिजर्व बैंक आज करेगा द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कुछ दिन पहले ही सरकार ने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति में 3 नामी अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े की नए सदस्यों के रूप में की थी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट इंडिया के कनाडा सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को किया संबोधित कहा भारत में निवेश करने का है बेहतर मौका कहा सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए कई महत्वपूर्ण सुधार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में कोलकाता में बड़े पैमाने पर किया विरोध प्रदर्शन राज्य सचिवालय की ओर कूच कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई लाठी भाजपा ने कहा राज्य में हो रही है लोकतंत्र की हत्या भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर शांति वार्ता की प्रगति पर चर्चा की पीएम ने शांत और स्थिर अफगानिस्तान के प्रति जताई भारत की प्रतिबद्धता जारी है देश में कोरोना के खिलाफ जंग अब तक 58 लाख से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही रिकवरी दर बढ़कर 85.25%। कोरोना से रिकवरी के मामले में भारत दुनिया में अव्वल। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग में ईगा स्विटेक और सोफिया केनिन के बीच होगी खिताबी भिड़ंत पुरुष एकल के सेमीफाइनल में राफेल नडाल का सामना होगा डियागो स्वार्ट्जमैन से वहीं दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से। और आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। 74 वर्षीय पासवान ने गुरुवार देर शाम दिल्ली में आखिरी सांस ली। लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक
पासवान का कुछ दिन पहले एक अस्पताल में हृदय का ऑपरेशन हुआ था। 5 दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में रहे रामविलास पासवान फिलहाल उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री थे। 5 जुलाई 1946 को बिहार में जन्मे पासवान बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता थे। 50 साल से अधिक के सियासी सफर में पासवान 8 बार लोकसभा सांसद रहे और फिलहाल राज्यसभा में थे। जेपी राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं से प्रभावित रामविलास पासवान ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ सियासी सफर शुरू किया था। पासवान का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया, आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों से लोक सेवा की सीख लेने वाले पासवान जी फायर ब्रांड समाजवादी के रूप में उभरे। उनका जनता के साथ गहरा जुड़ाव था और वे जनहित के लिए सदा तत्पर रहे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदना। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनकी गणना सर्वाधिक सक्रिय तथा सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले सांसदों में की जाती है। वे वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले तथा हाशिए के लोगों के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं शब्दों से परे दुखी हूं। हमारे राष्ट्र में अब एक ऐसा शून्य है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो हर गरीब की गरिमापूर्ण जिंदगी को सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक था। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। दूसरे चरण में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार में विधानसभा की 71 सीटों के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा। पहले चरण के लिए जनता दल यूनाइटेड के 41 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चरण के लिए 29 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और 1 सीट विकासशील इंसान पार्टी को दी है। दूसरी ओर महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय जनता दल इस चरण में 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस ने 21 और कम्युनिस्ट पार्टी माले ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। पहले चरण में जिन उम्मीदवारों ने नामांकन किया है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल प्रमुख हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण लागू पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर नए दलों को पंजीकरण कराने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का नोटिस देना होगा। पहले किसी भी मोर्चा या समूह को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराने के लिए अपने गठन से 30 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग में आवेदन जमा करना होता था। पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को पार्टी का प्रस्तावित नाम 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय अखबारों में 2 अलग-अलग दिन प्रकाशित करवाना होगा। यदि किसी को प्रस्तावित पार्टी के पंजीकरण पर आपत्ति है तो उसे नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होगी।
आयोग का कहना है कि पंजीकरण में ये छूट अंतिम चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की नई गठित मौद्रिक नीति समिति अपनी 3 दिन की समीक्षा बैठक के बाद आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगी। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति के मद्देनजर बेंचमार्क दरों पर यथास्थिति बनाए रखेगा। इससे पहले अगस्त में हुई एमपीसी की 24वीं बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। ये 4% पर बरकरार है और रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आम इंसान की जिंदगी को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ये नीति महंगाई पर काबू पाने की कोशिश के साथ ही ब्याज दर भी तय करती है। मौद्रिक नीति के आधार पर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति ही ये तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट इंडिया के कनाडा सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कनाडाई व्यवसायियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत में निवेश करने में कोई बाधा नहीं होगी, बल्कि निवेशकों को उनके देश की तरह ही एक अनुकूल माहौल का एहसास होगा। We want to ensure high level attention and effective hand-holding for investors. For these, a dedicated, empowered group of secretaries has been made. We are proactively monetizing assets across sectors: airports, railways, highways, power transmission lines, so many. प्रधानमंत्री ने भारत में उभरते निवेश के कई अवसरों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में निवेश करने का बेहतर मौका है। An opportunity for everyone, institutional investors, manufacturers, supporters of innovations, ecosystems, and infrastructure companies. There is an opportunity to invest, to set up units and to run businesses. There is an opportunity to partner with our private sector and with the governments. There is an opportunity to earn as well as learn. अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूती देने की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर अब्दुल्ला ने अफगान शांति प्रक्रिया पर भारत की सैद्धांतिक सहमति को लेकर आभार प्रकट किया। 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए अब्दुल्ला बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान भी उन्होंने तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता की प्रगति और अन्य द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। भारत ने शांति वार्ता के पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 58,27,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 83,011 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 85.25% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.54% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, इसलिए 2 गज दूरी बनाए रखें और अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।